کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. جس وقت انہوں نے سپیچ کی 2007 میں ٹی وی کی خرافات، تو اس کے بعد میں نے تو ٹی وی نہیں رکھا، انہوں نے ٹی وی چینل کھول لیا تو میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا آپ کی تو باتوں میں کنٹرڈکشن ہے، آپ کے عمل میں اور کہنے میں اور قول میں فعل میں تضاد ہے. تو میں نے پھر وہ ان چیزوں سے بچنا شروع کر دیا جن میں مطلب انگوٹھے چومنے سے لے کر، میلاد منانے سے لے کر، مشکل کشا سے لے کر، حاجت روا سے لے کر، قبروں پہ جا کے سجدے کرنے سے لے کر جتنی بھی معاملات تھے یا پیروں کے معاملات کے اوپر، وہ میں نے پھر وہ ان سے اوائڈ کرنا شروع کر دیا. تو نفل جو میں نے پڑھے وہ میں نے رفع دین کے ساتھ پڑھے، یعنی 4 فرض جماعت کے ساتھ پڑھے، 2 سنتیں پڑھی، اس کے بعد نفل پڑھے. وہ دن آج کے دن اب لوگ مجھے کبھی کہتے ہیں کہ تو جو ہے وہ بریلوی تھا پھر دیوبندی ہو گیا، اب اہل حدیث ہو گیا، اب تیرا اگلا جو ہے نا وہ قادیانیوں کی طرف. میں نے کہا کچھ خوف خدا کرو، بٹ اتنی بڑی بات تو نہیں کرو. مذاق کرنے لگے، بولا میں تیرے کو یا لوگوں کو مرواؤں گا کہ یہ فرقہ نیا بنا رہا ہے اور لوگ تیرے کو مارنے لگ جائیں گے. میں نے کہا مثال کے طور پہ. بولا مثال ابھی تیرے کو میں دیتا ہوں. بولا ہم بلال کالونی سے ڈیفنس میں DHA کے دفتر میں کام کرتے تھے، وہاں آتے تھے بس پہ 2 دوست آتے تھے تو دونوں اپنا کرایہ دیتے. ایک دن وہ کہتے ہیں ابھی تو میرا کرایہ دے. میں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا، اپنا اپنا کرایہ دو. اس نے کہا نہیں تو دے. کہا نہیں تو میں تیرے کو ابھی مرواؤں گا، کرایہ دے. بولا وہ کیسے؟ اس نے کہا پکڑو چور چور میری جیب کاٹے. لوگ مارنے لگ گئے، ایسے تیرے کو بھی مرواؤں گا. اس کا مطلب جو بدعت اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر میں تھی، کیا آپ کے اندر بھی وہی ہے؟ آپ بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں جی. میں نے کہا اچھا آپ مجھے بخاری شریف نکالیں. ان کی لائبریری تھی، پوری کتابوں کا وہ کمرہ تھا جہاں وہ بیٹھتے تھے. میں نے کہا سر مجھے لا کے دیکھا. بولا نہیں وہ میری اوپر ہے، یعنی بخاری شریف اوپر ہے. میں نے کہا سر یہاں آپ نے اتنی ساری کتابیں سجا کے رکھی ہیں اور بخاری شریف اوپر ہے. ان میں ان پہ سوال کرتا تھا اور کوئی بندہ سوال نہیں کرتا تھا. میں پہلے پوچھتا تھا، میں نے کہا میں نے سوال کرنا ہے، اور اگر آپ نے ڈکٹیٹرشپ قائم کی تو پھر آپ میں اور مارشل لا میں کیا فرق ہے اگر آپ سوال نہیں کرنے دیں گے مجھے تو. بولا نہیں سوال کرنے کا کیا. میں نے کہا میں تو بریلوی مکتبہ فکر سے آپ لوگوں کی طرف آیا ہوں اور آپ لوگ مجھے سوال نہیں کرنے دے رہے. تو مجھے تو خیر وہ مطلب اس سے وہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ تصویریں بنانے سے، چونکہ میں اتنے سینئر لیول پہ متعدد مرتبہ جیلوں میں مارے بھی گئی اور وہ بھی رہا، تو مجھے تو وہ نہیں ہے. لیکن نوجوان نسل کو ضرور ہوتا ہے کہ جی وہ لوگوں سے ملیں اور انجینئر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے سیلفی بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام نوید انور ہے جی. نوید انور؟ جی جی. نوید انور صاحب کدھر سے ہیں؟ میں کراچی سے. کراچی، ماشاءاللہ. اکیلے ہیں؟ جی جی اکیلے. اچھا اکیلے. اسپیشل آئے ہیں یا پھر کوئی کام تھا؟ نہیں میں ایک شادی پہ آیا تھا. تو شادی کے بعد اب آج سنڈے آیا تھا تو میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں. تو یہ میرا سیکنڈ وزٹ ہے اسمبلیز اکیڈمی میں. پہلے بھی ایک بار آیا تھا 1 سال پہلے تو ہو کے گیا تھا. اچھا کراچی سے آپ آئے ہیں جی. لیکن آپ تو پنجابی لگ رہے ہیں. جی جی ظاہری بات ہے، پنجابی تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں. نہیں میرا سوال بھی یہی تھا کہ کب سے کراچی؟ میرا حال 45 سال سے. اچھا 45 سال سے. ماشاءاللہ. کراچی ماشاءاللہ 45 ایئر. لیکن ابھی تک آپ کا لہجہ جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے، میری شادی بھی یہاں گجرات میں ہوئی ہے. ہاں وہ ہمارے والا ہی ہے، ورنہ تھوڑی سی ٹون آ جاتی ہے کراچی والی، لیکن ابھی تک آپ کا یہی لہجہ ہے. چلیں ویلکم جی آپ کو جہلم اکیڈمی میں. شکریہ. اچھا جی یہ بتائیں کہ آپ کا سابقہ فرقہ کیا تھا؟ دیکھیں میں بیسیکلی تو میرے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی، عزیز و قارب رشتہ دار سب، وہ چونکہ میرا جو گاؤں ہے وہ بھی بریلوی مکتبہ فکر سے ہے. ٹھیک ہے. اور میرا تعلق بھی انہیں سے تھا. اور میں جب کراچی میں جماعت اسلامی دعوت اسلامی کے پروگراموں میں جاتا تھا، شب جمعہ میں یا اجتماعات میں، یا ان کا سرائے مدینہ ہوتا تھا سپر ہائی وے پہ کراچی ٹول پلازا کے پاس، ٹھیک ہے، وہاں جاتا تھا تو میں ان کے پروگراموں کو دیکھتا تھا. جو میرے محلے میں مسجد تھی وہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد تھی، تو وہاں پہ میاں محمد صاحب کا کلام سنایا جاتا تھا. وہاں پہ جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کی جو اپروچ ہوتی تھی اس کے مطابق اسپیچ ہوتی تھی. تو وہ میرا بیک گراؤنڈ تو جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر تھا. ٹھیک ہوگا. اچھا یہ بتائیں کراچی سے آپ آئے ہیں. جی جی. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ سر میں نے کراچی میں ہی میٹرک کیا ہے، وہیں گریجویشن کیا ہے، وہیں بزنس کرتا ہوں. اور چھوٹی سی میری ایک فیکٹری ہے
मैं वहाँ पे काम करता हूँ, अपनी फैक्ट्री है करंगी इंडस्ट्रियल एरिया में। दावत इस्लामी से तल्लक था? जी, दावत इस्लामी से ताल्लुक़ इस तरह से था कि हमारे मोहल्ले में जो मस्जिद थी वहाँ से जो हर हफ्ते के दिन शब जुमा को रात को लोग जाते थे, मैं भी अपनी गाड़ी पे 2-4 दोस्तों को बिठा के साथ लेकर जाता था। यानी ये नहीं है कि वो ख़ास जमात से को लगाओ, ज़्यादा नहीं था उनका कोई मेंबर वगैरह? उनका बकायदा जैसे हरी पगड़ी बांधना, वो चक्कर नहीं था, वो नहीं था, या उनका बकायदा मरीद होना। वैसे पापा जानी के फैन तो होंगे? नहीं, जाता था उनके प्रोग्राम में जाता था, लेकिन जिस वक्त उन्होंने स्पीच की 2007 में टीवी की खराफात, तो उसके बाद मैंने तो टीवी नहीं रखा, उन्होंने टीवी चैनल खोल लिया। तो मैं पीछे हट गया। मैंने कहा आपकी तो बातों में कंट्रडिक्शन है, अच्छा। आपके अमल में और कहने में और कॉल में फेल में तजाद है। अच्छा। आप हमें कहते थे कि टीवी की खराफात है, आप कहते टीवी के यूज़ सही नहीं है, यानी टीवी का इस्तेमाल अच्छा करें या बुरा करें। तो मैं उनसे पीछे हट गया। फिर मेरे कुछ पठान दोस्त थे, ठीक है, अच्छा, जो पठान दोस्त थे वो मुझे हर रोज़ कहते थे, शाम को जब हमारी गैदरिंग होती थी, तो हमारे महल्ले में मिक्स गैदरिंग है, यानी पंजाबी हैं, हज़ारे वाले हैं, कश्मीरी हैं, पठान हैं। तो मेरे दोस्त थे पठान, खटक बरादरी से भी थे, यूसुफ जई भी थे, अफरीदी भी थे, मरवत भी थे, वो मेरे दोस्त थे। वो कहें यार ये तुम लोग जनाजे के बाद दुआ मांगते हो, ये किधर से साबित होता है? तो मैं कहूँगा यार ये जनाजे के बाद हम तो गलत बात तो नहीं करते, हम तो सूरत फातिहा पढ़ते हैं, सूरह इखलास पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये साबित नहीं होता। उनकी ये बात रोज़ वो अक्सर बहस होती थी तो करते थे। तो ग्रेजुअली मैं गिजरी में एक मस्जिद है, मतलब अहले सुन्नत व जमात बरेलू मकतब फिक्री, वहाँ मैंने एक बार नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की, थोड़ी लेट पढ़ी। तो वहाँ पे मुख्तलिफ बोर्ड लगे हुए थे, उनमें लिखा हुआ था कि जी मिलाद मनाने के हवाले से, बाकी बातों के हवाले से, जनाजे के हवाले से। तो जो उनके दलाइल थे वो सुने, तो उन पढ़े मैंने, तो उनमें मुझे वज़न नज़र नहीं आया, यानी वो जो कहते थे साबित नहीं होता। तो वो बात वहाँ तक नहीं जाती थी, नबी पाक तक, खुलफा राशिदीन तक, सहाबा तक या अहले बैत तक वो नहीं जाती थी। तो मैंने कहा यार इसमें कोई वज़न नहीं है। वाकई वो जो मेरे पख्तून भाई कहते हैं वो किसी हद तक सही कहते हैं कि ये तो आपका साबित नहीं होता है। तो मैंने उन चीज़ों से अवॉइड करना शुरू कर दिया जिन चीज़ों को मैंने देखा कि साबित नहीं होती हैं नबी पाक से, सहाबा से, खुलफा राशिदीन। माशाल्लाह, तो ठीक मैं हो गया, पीछे हट गया। उसके बाद इत्तेफाक से वो मैंने अपना घर बेच दिया। तो मैं जिस जगह पे घर लिया वो था देवबंद मकतब फ़िक्र की मस्जिद, खासी बड़ी मस्जिद है, आज भी माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है वो। वहाँ मैं नमाज़ पढ़ने लग गया। फिर उनके प्रोग्रामों में मैं तबलीगी जमात के इज्तिमात में जाने लग गया, और तबलीगी जमात के इज्तिमात में जाता था, शब जुमा में जाता था, और सालाना रायवड़ भी आ जाता था प्रोग्राम में, और से रोज़े भी लगाता था। मतलब चिल्ला या 4 महीने लगे हुए टोटल तो जो यहाँ पे होगी तबलीगी साइड, ठीक है, ठीक है। जब इनकी तरफ होगी तो बहुत सारी बातें वो जो उस वक्त मुझे सही पता नहीं चलती थी, आज पता चलने लगी। तो जब वो लगी तो मैंने कहा यार ये तो मेरे वालिद का तो इंतकाल 2002 में हो गया हुआ था, वालदा मेरी का इंतकाल 2008 में हुआ है। तो मैंने फिर वो उन चीज़ों से बचना शुरू कर दिया जिनमें मतलब अंगूठे चूमने से लेकर, मिलाद मनाने से लेकर, मुश्किल कुशा से लेकर, हाजत रवा से लेकर, कब्रों पे जाके सजदे करने से लेकर, जितनी भी मामला थे या पीरों के मामला के ऊपर वो मैंने फिर वो उनसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो ये रहा मेरा सिलसिला जो मेरा देवबंद की तरफ में आया। ठीक है। इंजीनियर साहब कब आए लाइफ में, क्या हुआ? अच्छा देखें, अब ये स्टोरी देवबंद मकतब फ़िक्र की तरफ तो मेरी सोच थी, मैं देख रहा था। फिर क्या हुआ कि ये आया ना सोशल मीडिया आया। हाँ जी। तो सोशल मीडिया में जो है वो मेरे पास मोबाइल जो था वो मुझे कुछ इतना ज़्यादा ये चैनल का या इनकी बातों का मुझे इतना पता नहीं है। ये जो मुख्तलिफ आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, व्हाट्सएप है, सही है, ठीक है। 2018 में मैं मुख्तलिफ, चूँकि हमारा ये जो आपका व्हाट्सएप है, तो मुझे व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था। तो मेरे साथ जो मेरे महल्ले के दोस्त थे वो व्हाट्सएप चलाते थे, तो उन्होंने वो मुख्तलिफ वीडियोज़ वगैरह उनकी अपलोड करते थे। उसी में मैं जो है ना, ये जब कोरोना आया उससे पहले मैं भी व्हाट्सएप चलाने लग गया, सीखने लग गया। तो उसके अंदर जो है मेरे पास मुख्तलिफ क्लिप आने लगे। उसमें एक क्लिप आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो मैंने उसको क्लिक किया। चूँकि मजहबी गेटअप था तो मैं मजहबी लोगों को सुनता था, यानी डॉक्टर इसरार साहब को सुनता था, तारक मसूद को सुनता था, मौलाना अपना तबलीगी जमात वाले जो तारक मसूद साहब हैं उनको सुनता था। इस तरह और मुख्तलिफ लोगों को, डॉक्टर इनको अपना
तारुल कादरी साहब को सुनता था, तो इस तरह मुख्तलिफ लोगों को सुनता था। उनमें इनका एक क्लिप आ गया 2018 में, चूँकि उन दिनों 2019-20 के 19 में कोरोना आ गया तो कारोबार नहीं था, फैक्ट्री बंद थी, हम बैठे रहते थे और सोशल मीडिया चलाते थे बस। तो उस तरह से ये पहली दफ़ा सुना। तो चूँकि बचपन से मुझे अहले बैत के घराने से एक मोहब्बत थी। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरे वालिद चूँकि आर्मी में थे तो वो यहाँ सियालकोट में थे, यहाँ सियालकोट से 1982 में कराची उनकी ट्रांसफ़र हुई। तो जो हमारा बटमैन होता था वो हमें अक्सर नोहे वगैरह सुनाता था, तो मैं उनसे थोड़ी सी उन अल्फाज से हमदर्दी होती थी जो मतलब इमाम हसन इमाम हुसैन से, अहले बैत के घराने से, उनकी शहादत से, उससे तो वो मेरे था। तो जब ये बात करते थे अहले बैत के घराने की, तो मुझे वो अच्छा लगा, तो मैं इनको सुनने लग गया। लेकिन रफ़ायदान मैंने फिर भी नहीं किया। रफ़ायदान तो मैंने तकरीबन जाके कोई 2022 में इशा की नमाज़ पढ़ चुका था मदीना मस्जिद में, अख्तर कॉलोनी में। तो मैंने कहा या अल्लाह, वो कहते हैं कि रफ़ायदान तर्क हो चुका है, ये कहते हैं रफ़ायदान है। तो आया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आखिरी वक्त में नहीं किया था, जैसे कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी देवबंदी दोनों कहते हैं कि भाई आखिरी टाइम पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो भी मेरी इस्लाह फरमा, और अगर किया था तो भी इस्लाह फरमा। तो सुनते पढ़ रहा था मैं, तो नफल जो मैंने पढ़े वो मैंने रफ़ायदान के साथ पढ़े, यानी 4 फ़र्ज़ जमात के साथ पढ़े, 2 सुनते पढ़ी, उसके बाद नफल पढ़े। वो दिन आज के दिन, अब लोग मुझे कभी कहते हैं कि तू जो है वो बरेलवी था, फिर देवबंदी हो गया, अब अहले हदीस हो गया, अब तेरा अगला जो है ना वो कादियानियों की तरफ। मैंने कहा कुछ खौफ खुदा करो, बट इतनी बड़ी बात तो नहीं करो। अभी भी मेरा कज़न है जिसके घर पे मैं ठहरा हूँ, रात को उससे बहस हो रही थी, कल भी बहस हो रही थी बात। तो मैंने उससे कहा यार तू अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक की बात कर, यानी जो कुरान पाक में है और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है हदीस की, उसको तो फॉलो कर। तू कह रहा नहीं हम जो है इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी के जो है मानने वाले, और हमारा अकायद जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं। मैंने कहा तू 125 साल पीछे तो कुछ थे ही नहीं। तो इस तरह की गुफ्तगू उनसे मेरी बहस व तकरार होती रहती है, बातचीत होती रहती है। मैंने मुझे आज कहा था कि मेरे साथ चलो, उसने कहा मैं नहीं जाता, तो मैं फिर आ गया निकल के। तो इस तरह से है, तो ये है सूरत। बड़ी जुर्रत है जी वैसे इन लोगों की जो डायरेक्टली कहते हैं जी हम फलां बुजुर्ग को मानने वाले हैं या उनके पैरोकार हैं। बड़ी जुर्रत है वैसे सर, अल्लाह के नबी के सर कैसे हम ये मान देखें बात, मैं वही तो कह रहा हूँ, बड़ी जुर्रत है। जब तक मैं खुद बरेलवी मकतबा फ़िक्र में था उस वक्त हम भी कहते थे अब्दुल कादिर जिलानी मुश्किल कुशा, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि या अल्लाह अगर मेरी इस्लाह ना होती और मैं इसी तरह उन्हीं सोच पे मरता, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तो कुरान पाक में तेरे को कहा था कि बारिश मैं बरसाता हूँ। सही बात, मतलब आसमान मैंने बनाए हैं, ज़मीन मैंने बनाई है, और सारी मखलूक़ात का मालिक और खालिक मैं हूँ। और तू जो है वो किसी बंदे को के सामने अपनी हाजतें रख रहा है, किसी बंदे के सामने जो है वो अपनी ज़रूरतों को रख रहा है। ठीक है, दुनियावी एतबार से आपके मामला तो इस सेंस में अगर हो जाएं कि आप जो असबाब इख्तियार करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब नमाज़ पढ़ के दुआ मांगनी हो तो फिर अल्लाह से मांगी जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि बारिश होगी तो आप, बारिश तो फरिश्ता बरसाता है, लेकिन क्या हम फरिश्तों को कहते हैं भाई बारिश दे दे फरिश्ते? हम तो कहते हैं या अल्लाह बारिश बरसा दे। ऐसे तो फिर बाकी बातों के लिए भी हमें अल्लाह ताला को ही जो है के सामने अपनी हाजतों को रखना चाहिए। इंजीनियर साहब को सुनना जब शुरू कर दिया, जैसे अभी आपने बताया कि जिस दोस्त या जिस भाई के यहाँ आप आए हुए हैं उनसे भी बहस हो रही है इस बारे में, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग थे, जैसे आप नमाज़ पढ़ते थे, आपने बताया कि देवबंद के नज़दीक हो चुके थे और वो जाते थे, तो वहाँ पे आपकी दोस्तियाँ यारियाँ भी होंगी मस्जिद में नमाजियों के साथ दोस्त, तो उन्होंने एतराज़ किया होगा कि भाई कौन सी साइड पे, बताए ना कोई स्टोरी। सर एतराज़ क्या, मेरे दोस्त थे मेरी एज के, मेरे से थोड़े से बड़े, यानी 60-65 साल की उम्र के, वो क्या सोचते हैं बरादरी के। अब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत में, पिछले दिन उनका इंतकाल हो गया। तो जब मैं उनसे बात करता तो मैं कहता था यार नमाज जो नबी पाक का तरीका है, हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो तो नबी पाक के तरीके के मुताबिक नहीं है। हमारी नमाज तो हनफी है, हम तो इस तरह की नमाज नहीं पढ़ रहे जो कि नबी पाक के तरीके से हो। तो वो कहते थे कैसे? मैंने कहा यार देखो बात ये, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जलसा इस तरह ये था पहली और तीसरी रकत में, और हाथ जो है वो सीने पे बांधना सहाबा से साबित हो रहा है। मेरे पास तो गवाही सहाबा की है। कल को अगर गलत होगा मैं कहूँगा साहबी ने कहा था और साहबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था। कहते हैं नहीं हम क्या गलत पढ़ते हैं, ये है वो है। बार वो बहस होते होते एक दिन मुझे कहते हैं जी तू उधर जाया कर उस मस्जिद में, इधर नहीं आया कर। मैंने कहा यार तू कौन होता है, ये मस्जिद तो मेरे अल्लाह की है, तेरी तो मस्जिद नहीं है। जब तेरे घर पे होऊंगा तो तू मुझे निकाल देना।
मजाक करने लगा, बोला मैं तेरे को यहाँ लोगों को मरवाऊंगा कि ये फ़िरका नया बना रहा है और लोग तेरे को मारने लग जाएंगे। मैंने कहा मिसाल के तौर पे? बोलता मिसाल अभी तेरे को मैं देता हूँ। बोला हम बिलाल कॉलोनी से डिफेंस में DHA के दफ्तर में काम करते थे, वहाँ आते थे बस पे, 2 दोस्त आते थे तो दोनों अपना किराया देते। एक दिन वो कहते हैं अभी तू मेरा किराया दे। मैंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा, अपना किराया दो। उसने कहा नहीं तू दे। कहा नहीं तो मैं तेरे को अभी मरवाऊंगा, किराया दे। बोला वो कैसे? उसने कहा पकड़ो चोर मेरी जेब काट रहे। लोग मारने लग गए, तो ऐसे तेरे को भी मरवाऊंगा। तो मैंने कहा भाई देखो, ना तो तुम्हारी मस्जिद का मुझे सदर निकाल सकता है, ना इमाम साहब निकाल सकते हैं। मैं तो नमाज यहाँ पढ़ूंगा और मैं सफ़े अव्वल में इमाम के करीब, मेरी आदत है, रूटीन है हर मस्जिद में ही कि मुझे अगर जगह मिले ना इमाम के करीब तो मैं वहाँ पढ़ता हूँ। तो मैं फ़ायदैन भी करता हूँ, ऊंची आमीन भी कहता हूँ। तो उसने कहा उधर जाया कर पढ़ने के लिए। फिर मैंने इमाम साहब से सवाल शुरू कर दिए अपने मस्जिद के। मैंने कहा इमाम साहब, ये जो हम लोग जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैं तकी उस्मानी साहब के मदरसे में जाता हूँ दारुल उलूम कुरंगी में, तो वहाँ पे तो वो दुआ नहीं मांगते हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद। और मैं तबलीगी जमात के इज्तिमा में जाता हूँ, वहाँ पे वो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ नहीं मांगते हैं। हाँ, एक इज्तिमाई दुआ मांगते हैं जिस वक्त प्रोग्राम इख्तिताम को जाता है। आप लोग दुआ मांगते हैं या महल्ले की मस्जिद में, तो इसकी क्या वजह है? बोला देखे लोग दुआ पढ़ना ना भूल जाएँ, दुआएँ करना ना भूल जाएँ अल्लाह से। मैंने कहा यार आप तो कहते थे मुझे कि नवीद जनाजे के बाद दुआ साबित नहीं होती, तो मैंने वो छोड़ दिया। मेरे वालदैन का वो तरीका था, मैंने वो छोड़ दिया। अपने वालदैन के तरीके से हट के मैं आपकी तरफ आ गया। आप कहते हो कि यार ये छोड़ना दे, इसका मतलब जो बिद्दत अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र में थी, क्या आपके अंदर भी वही है? आप भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी देखें जी। मैंने कहा अच्छा आप मुझे बुखारी शरीफ निकालें। उनकी लाइब्रेरी थी, पूरी किताबों का वो कमरा था जहाँ वो बैठते थे। तो मैंने कहा सर मुझे ला के देंगे? बोला नहीं वो मेरी ऊपर है, यानी बुखारी शरीफ ऊपर है। मैंने कहा सर यहाँ आपने इतनी सारी किताबें सजा के रखी और बुखारी शरीफ ऊपर है। खैर फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा नहीं जी ये है वो है। फिर मैंने कई दफ़ा सवाल किए तो लोग बोले जी लोग इतराज़ करते हैं कि ये नवीद सवाल करता है, तो सवाल करना हो तो आप असर के बाद आके किया करो, फजर में ना किया करो। मैंने कहा असर में तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं अपने काम पे होता हूँ, तो मेरे पास तो उस वक्त टाइम नहीं होता। बहरहाल फिर ये हुआ कि ग्रेजुअली मतलब चूँकि मेरे उस महल्ले में एक ही 4-5 गलियों में 3 मकतबा फ़िक्र की मसाजिद हैं। एक बरेलवी मकतबा फ़िक्र की है, एक देवबंद मकतबा फ़िक्र की, एक अहले हदीस वल जमात की है। तो मैं उनकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लग गया। तो ज़ाहिर बात है जिन दिनों कोरोना था उन दिनों वो थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो मैंने उनको कहा, 1-2 दफ़ा मस्जिद बंद थी, मैंने कहा भाई मस्जिद खोलो मुझे नमाज़ पढ़नी है। बोला नहीं हम अभी बंद है, हम नहीं खोल रहे, ये है। इस तरह की सूरत हाल मेरे साथ रही है मस्जिद में भी, और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की सोच के हिसाब के साथ मेरी उनके साथ मस्जिद में भी खासी तल कलामी भी रही है। फिर जो महमदी मस्जिद के जो अहले हदीस के मुख्तलिफ उलमा इकराम आते, यूसुफ पसरूरी साहब आए, उनसे मैंने सवाल किया। मैंने कहा जी आप तो मुझे ये कहते थे कि जो है हमारा जो है सुन्नत के मुताबिक हम अमल करते हैं, लेकिन अम्मार बिन यासर की जो हदीस है उसके ऊपर आप लोगों के जो है वो मुख्तलिफ सोच है। फिर मैंने कहा बनु उमैया के मामलात के ऊपर आपकी सोच जो है मुख्तलिफ है, जबकि चारों खुलफाए राशिदीन के मामलात और हैं। खुलफाए राशिदीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उनकी जो हदीस है कि मेरे बाद वो अली हज़रत अली को कहा था जूता गांठ रहे थे कि जो जी तो वो बड़ी बेहतरीन वो बात है। उनका नहीं देखें जी वो आप इस तरह की बात ना करें, हमारे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा आप हदीस को फॉलो करने की बात करते हैं, जबकि हदीस के अंदर तो आप अमल नहीं कर रहे। बहुत सारी हदीसें आप जो बनु उमैया के मामलात के ऊपर आती हैं उनसे आप कतरा जाते हैं, अवॉइड करते हैं, आप इधर उधर जाने लग जाते हैं। उनसे फिर मेरी ये बहस होने लगी। लेकिन फिर चूँकि उनकी मस्जिद में जैसे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं 21, 23, 25, 27 रमज़ान के, उनमें मैं उन पे सवाल करता था और कोई बंदा सवाल नहीं करता था। मैं पहले पूछता था, मैंने कहा भी मैंने सवाल करना है, और अगर आपने डिक्टेटरशिप कायम की तो फिर आप में और मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है अगर आप सवाल नहीं करने देंगे मुझे तो? बोला नहीं सवाल करने का क्या। मैंने कहा मैं तो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से आप लोगों की तरफ आया हूँ और आप लोग मुझे सवाल नहीं करने दे रहे। मेरी तिश्नगी कैसे दूर होगी? तिश्नगी तो तभी दूर होगी जब मेरा ज़हन क्लियर हो, सब क्लियर होगा। बिल्कुल सर। तो फिर मैं उनसे सवाल करता, उसमें कहीं पे उनका जवाब होता था, कहीं पे नहीं होता था। मैं कहता था आप मुझे बताएं कि नबी पाक की नमाज का तरीका क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी नंगे सर नमाज पढ़ी है, तो फिर मैं भी नंगे सर पढ़ा करूं? नहीं जी वो एक आध दफ़ा के अलावा। मैंने कहा सुन्नत क्या थी? बोला वो तो सर ढका हुआ होता था। मैंने कहा क्या मामा शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर बांधा है? जुमे की नमाज में देखा है साहबी ने काले रंग का मामा, इसका मतलब मामा है। तो इस तरह की मेरी उनसे और बहुत सारी बातों पे मुख्तलिफ इशूज़ पे गुफ्तगू उनसे होती है, अभी भी होती है। यहाँ पे भी अभी परसों मैं अपने एक मामू के घर पे था, वो मेरा कज़न भी था,
वो सारे बरेलवी मकतबा फ़िक्र के हैं। मुझे कहते हैं ओए तू आने दुआ डायरेक्ट अल्लाह को मंगनी चाहिए, पौड़ियाँ चढ़न वास्ते तेनू छाते जान वास्ते पौड़ियाँ चाहिए ने। मैं कहा पौड़ियाँ तो छाते जान वास्ते चाहिए ने, अल्लाह को जान वास्ते मैनू किसी बंदे की जरूरत नहीं है। अल्लाह मेरी शहर तू भी ज़्यादा करीब है, तो जो अल्लाह मेरे शहर के भी ज़्यादा करीब है, तो कैसे हो सकता है कि मैं उसके लिए किसी के पास जाऊँ, वो भी जो फौत हो चुका हो, उसे कहूँ तू बाबा जी अल्लाह से कहो और फिर अल्लाह जी मेरी सुनेंगे, तो ऐसे तो सही नहीं हो बात सकता। है, सही बात तो ये है सूरत। सही बात है। चले इंजीनियर साहब को जितना जाना जितना सुना, इनसे तो अभी तक आपको कोई इख्तलाफ तो नहीं हुआ? अच्छा देखिए, इंजीनियर साहब की एकेडमी में आज से 2 साल पहले मैं सवात गया था अपने दोस्तों के साथ बाई रोड, वापसी आते मैंने कहा मुझे झेलम जाना है, वो मेरे साथ है, वो मेरा कज़न भी था और वो दूसरे दोस्त भी थे। तो बर्फ़ के कारखाने पे आपकी एकेडमी होती थी। जी जी। उस वक्त वहाँ आए तो उन्होंने कहा ये तो शिफ्ट हो रही है, उस वक्त शिफ्ट हो रही थी। ठीक है। अच्छा, जब शिफ्ट हो रही थी तो मैंने कहा भी कहाँ पे है, बोला वो दूसरी जगह है, तो मुझे वो मिली नहीं, चूँकि मेरे लिए ये अननोन प्लेस था। सही है। हम वापस चले गए। पिछले साल आया तो मैं ढूंढते ढूंढते उस्मान साहब को फ़ोन किया, उस्मान साहब का नंबर मेरे पास था, फ़ोन किया, बताया इस तरह लोकेशन में आ गया, सुना। अच्छा, इनकी कई बातों से मैं समझता हूँ कि मुझे इख्तलाफ होता है। सही है। जो इनका लहजा है उससे, जैसे वो 2-4 दिन पहले इरशाद भट्टी ने इंटरव्यू लिया, उनका तबलीगी जमात वाले, क्या नाम है, तबलीगी जमात वाले ताजमील साहब, तारिक जमील साहब, उनका इंटरव्यू लिया, उसमें उन्होंने कहा कि तेनू ते बुखारी और मुस्लिम दा बुखार हो गया, तो वो उसमें तो वो कहते हैं कि लहजा, तो यकीनी तौर पे लहजा जो है वो एक दाई का अच्छा होना चाहिए। सही है, इनका लहजा जो है वो थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन यही लहजा मैंने डॉक्टर इसरार साहब के भी लहजा देखा है। जब वो तौहीद की बात करते थे तो उनकी आंखें जो है ना, यानी ऐसे खुली भी और बड़ी सख्त गुस्से में उस वक्त जब बात करते थे तो बिल्कुल सही। तो मैंने देखा, अच्छा मैंने फिर इन्हीं के उसके ऊपर मैंने जो है वो मौलाना मदूदी साहब की खिलाफत मलूकियत लेके पढ़ी, अल जिहाद जो था वो भी उनकी जिहाद के मामलात पे भी पढ़ी। तो डॉक्टर इसरार साहब को भी मैंने सुना, मौलाना मदूदी का भी मामलात, बनो मियाँ के मामलात पे, तो इनकी बातें काफ़ी हद तक तो वो ठीक हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे इनका थोड़ा सा ये है कि होता है कि थोड़ा सा, यानी लहजा आम लोगों को ये लगता है कि जो मिंबर पर बैठ के बात करने वाला है, जैसे कराची के मौलाना तारिक मसूद है, वो कई दफ़ा वो भी स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं। स्लैंग वर्ड आप समझते हैं ना, स्लैंग वर्ड वो यूज़ करते हैं, तो वो आम तौर पर मौलवी से बंदा वो नहीं कर रहा होता, आम गली महल्ले के बंदे से तो उम्मीद कर रहा होता है कि किसी सही बात है, स्लैंग वर्ड यूज़ कर ले। तो बाज़ का ये भी स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं, वो भी स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं, तो अगर उनसे बचते हुए अच्छे अल्फाज यूज़ करते हुए बात करें तो ठीक है। मेरी आज ये सेकंड यहाँ विज़िट है, तो मैं लास्ट टाइम में आया था तो उस वक्त मुझे एक शादी पे जाना था, तो मैं इनका प्रोग्राम इख्तिताम हुए पहले ही मैं उठ के चला गया था, यानी लगभग को 12:45 बजे के करीब। आज मेरा इरादा है कि मैं पूरा प्रोग्राम इनका अटेंड करूँ। और चले ये तो उनकी ज़ाती बात है ना, ये तो उनकी ज़ातियात पे बात है कि उनका लहजा, लेकिन जो दीन बताया, जितना भी उन्होंने दीन बताया, जो आपने देखा परखा, ठीक है, आप भी तहकीक के आदमी, आपने देखा ही होगा, ये बात कर रहा है, ये रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, वो आपको क्या लगता है ठीक बताता है? देखिए, मेरे पास पहले हदीस की कोई किताब नहीं थी, इन्होंने बताया कि यार जो इंसाइक्लोपीडिया है मिशकात मसावी, जो मुख्तलिफ सुन्नियों की जो 6 सियासता की किताबें हैं, उन सब में से हदीसों को जमा करके एक में किया गया है। तो मैंने दारुल इस्लाम पब्लिकेशन है कराची में, बैतुल इस्लाम मस्जिद है, उसके पास उनका वो था कुतुब खाना, किताबों की दुकान थी, मैंने वहाँ से वो लिया, लेके उसको पढ़ना शुरू किया। फिर कभी रेफरेंस जरूर पढ़ता तो इस्लाम 360 से भी मैं ले लेता था। तो मैंने तहकीक की तो उसमें आलमोस्ट बातें तो वही हैं जो ये करते हैं, उसी हैं। हो सकता है ट्रांसलेशन में कोई थोड़ा बहुत को फ़र्क हो तो एक बात लग गया, लेकिन आलमोस्ट देखें जो 200 साल 150 साल 250 साल बाद जिन्होंने किताबें लिखी हैं, उस वक्त वो वाक़यात हो चुके हुए थे जिनके ऊपर उन्होंने कही, यानी इमाम मुस्लिम हूँ, इमाम बुखारी हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ, या इमाम नसाई हूँ, या इमाम तिरमिज़ी हूँ, तो उन्होंने जो बातें ये हदीस से कोट करते हैं, हाँ अहले हदीस उलमा इकराम कहते हैं नहीं जी ये तो तर्जमे का ट्रांसलेशन गलत। भाई ट्रांसलेशन आप अपनी पढ़ लो, आप अपनी देख लो, तो ट्रांसलेशन आलमोस्ट करीब ही होती है, वो नहीं है, सही है, इनका ठीक होती है, सही होगा। चलो जी, आज इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी होगी, इंशाल्लाह आज उम्मीद है पूरा लेक्चर सुनेंगे इंशाल्लाह। और मैं देखें बात यह है जी 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 कि मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूँ, ठीक है, जी 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 प्रोग्राम उनके लेक्चर सुनता हूँ, एक दफ़ा होके भी गया हूँ, आज मेरी कोशिश होगी कि मैं उनसे मिलूँ भी, और बाकी अल्लाह खैर करेगा। मुझे अच्छा लगा है, नौजवान नस्ल है, देखें नौजवान नस्ल अगर कहीं बेरारवी का शिकार होती है, कि
सोशल मीडिया के जरिए गलत रास्ते पे जाती है, उससे बेहतर है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते की तरफ आएँ, जी, नबी पाक के तरीके की तरफ आएँ। तो इंजीनियर साहब एक काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये कि इनके पास स्पेस की कमी ज़रूर है कि ये जगह महदूद है जहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं हो सकती। हो सकता है कि अगर इनके पास स्पेस ज़्यादा हो तो बड़ी गैदरिंग भी हो जाए, ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं। तो ज्यादा इंशाल्लाह लोग चाहिए नहीं, अगर ज्यादा लोग आएंगे तो मिलने के लिए इसरार करेंगे तो फिर टाइम मिलने के लिए देना पड़ेगा, तस्वीरों के लिए देना पड़ेगा, दर्स तो रह गया। तो आपका तो हफ्ते में एक दिन आप दर्स देते हैं तो आपके पास टाइम तो बचता है। ये तो नहीं है कि आप टाइम, अगर फॉर एग्जांपल जैसे इलियास कादरी साहब थे या और जो पीर होते हैं, वो अगर अपने मरीद को मिलने का टाइम नहीं देते, या ये तो खैर पीर मरीद वाला इनका सिलसिला नहीं है ना, तो बाज़ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो मिले उनसे। क्योंकि मैं खुद, मेरा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, मैं एक पार्टी का सिंध का हेड रहा हूँ, मैं उसको शो नहीं कर रहा था, ना बताना चाह रहा हूँ। तो मैं तो खुद मतलब एक उस लेवल पे जाता रहा हूँ, यानी गवर्नर हाउस से लेकर चीफ मिनिस्टर हाउस से लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर वहाँ तक मैं रहा हूँ। तो मुझे तो खैर वो मतलब उससे वो नहीं है कि लोगों के साथ तस्वीरें बनाने से, चूँकि मैं इतने सीनियर लेवल पे मुतअद्दिद मरतबा जेलों में मारे भी कहीं और वो भी रहा, तो मुझे तो वो नहीं है। लेकिन नौजवान नस्ल को ज़रूर होता है कि जी वो लोगों से मिलें और इंजीनियर साहब के साथ खड़े होकर सेल्फी बनाएं और वो उसको अपलोड करें अपने चैनल पे, अपने उस पे। नहीं, वो मिल रहे हैं, देखें मिलते हैं, अभी सबसे मिलेंगे, लेकिन आपने बात की ना कि जगह और बड़ी हो और बंदे आ जाएं, तो फिर वो फिर दीन का काम नहीं होगा, फिर तस्वीरें ही होंगी। दीन का काम तो हो रहा हर है। एक की अपनी सोच होती है। हमने, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आपको दे दिया। हाँ, तो मैं उनकी सोच बता रहा हूँ ना, उन्होंने ये कहा है कि बस ठीक है, जिसने आना है ये 200, 250, 400, 300, 500 बंदा आता है यहाँ पे, ठीक है, सुन रहे हैं ना। हम इनके लिए तो ज्यादातर बैठा भी नहीं है, ये तो है एक जरिया, लेकिन इसके जरिए जो आपको पता है वीडियोस के जरिए दुनिया में, बिल्कुल वीडियो, हम तो हमारी दावत तो यूट्यूब पे चल रही है। देखिए आपकी ये वीडियो के चैनल का मैं खुद आपको बताऊं कि कई दफ़ा पहले जब मैं दावत इस्लामी के या डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जमात थी, उनके मेरी मस्जिद में वो कैमरा लेकर आते थे। 1985, 86, 87 की बात है। उस वक्त बोले कैमरा मस्जिद में लाना सही नहीं है। लेकिन अगर आप जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे इस्लाम के लिए, तो दुनिया तो कर रही है। ये बेसिकली तो इसीलिए निकले थे कि भाई जापान वालों ने जो केसर निकाली थी कि वो स्टूडेंट लेक्चर रिकॉर्ड कर ले और उसको सुन ले। हम अगर इसको इस्लाम के लिए यूज़ करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसके ज़रिए से लोगों तक मैसेज आए। देखें ना, मैं जो आया हूँ यहाँ पे, अगर मैं तो आज तक इंजीनियर साहब से नहीं मिला हुआ, ऐसे ही मैं अगर सोशल मीडिया के ज़रिए ही इनके लेक्चर सुनता हूँ, उन्हीं के ज़रिए मैं इनकी बातों को सुन के तो उनके मामलात पे वो अमल करता हूँ। चलो जी, काफ़ी टाइम हो गया, अच्छा लगा आपसे बात करके, अभी आप बैठे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। ओके। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।